Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department, BBD NIIT Lucknow. We are studying control system unit number 5, compensating network. Let's move on to the last lecture of compensating network, which is lag lead compensation design. It is minded it is not the last lecture of unit number 5 or module 5, but last lecture of the segment of compensator of module 5. Okay. The second module will be of state variable. From this module, the second element will be state variable. Okay. Let us begin. In previous lectures, we have already discussed about designing of a lag network and designing of a lead network in subsequently previous lectures as well. Okay. हमने सेपरेटली लैग नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करते हैं, लीड नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं लैग के, क्या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं लीड के, कैसा नेटवर्क डायनेमिक एलिमेंट्स दिखता है, क्या सॉल्व कर रहे थे और हम डिटरमाइन कर रहे थे वैल्यूज़ को जो अननोन हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि क्या हो सके हमें किसी भी सिस्टम के लिए वो वैल्यूज़ डिटरमाइन कर ले हम जो अननोन हैं, दैट आर 2 अननोन्स ओनली फॉर ईच कंपनसेटर, और उस वैल्यू से क्या करें हम कंडीशंस मेट कर सकें, अपने सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रही थी. ठीक है. नाउ लेट अस मर्ज इट. व्हाट अबाउट लैग लीड कंपनसेटर. ठीक है. लैग लीड कंपनसेटर का क्या है, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर ऑफ लैग नेटवर्क एज वेल एज लीड नेटवर्क. मतलब लीड और लैग नेटवर्क दोनों के ही सर्किटरी को कंबाइन कर दिया जाए तो जो न्यू सर्किटरी मिल रही है दैट इज आवर लैग लीड कंपनसेशन. लेट्स सी हियर. अगर हम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो लीड नेटवर्क किया था वहाँ पर क्या था, सर्किट में ऐसा ही सर्किट था शंट ब्रांच में, जहाँ पर कैपेसिटर शंटेड था रेजिस्टेंस के और एक रेजिस्टेंस था. ठीक है. दैट वाज लीड नेटवर्क. जब हमने लैग नेटवर्क किया था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में थे. नाउ वी आर मर्जिंग बोथ द सर्किट्स, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन शंट हियर, resistance and capacitance, another capacitance we have taken, hence we have writing here C1 and C2 because the values are different. Okay, maybe same, maybe different, we don't know, although they are different. Okay, so it is shunt here and here it is series. Now again we have two impedances here. See, this can be written as impedance number 1 Z1, this can be written as impedance number 2 Z2. We'll again use two port network equations, solve it, determine the transfer function KVL from input side, KVL from output side. पहले Z1 Z2 में जरा mention करते हैं. Z1 is parallel combination of resistance and this capacitance. ठीक है. What will it be? 1 upon S into C1 into R1 upon 1 upon S C1 plus R1. ठीक है. Z2 में क्या है? It is series combination of resistance and capacitance. We can simply write it as R2 plus 1 upon S into C2. ठीक है. हमें Z1 पता, Z2 पता. Again let me tell you, we are doing what? We are going to try and find out transfer function and hence we are using the Laplacian domain. Any case, even if we have to solve, Laplacian domain is much easier as compared to any other methodology you can think of. ठीक है. Let's begin by writing the KVL equations. Let's assume the current flowing in this circuit is again IS only, right? First we will write KVL equations from for input circuit. क्या आ जाएगा? V input S is equal to, वो पूरा segment हमने Z1 माना था ना, तो Z1S plus Z2S into current IS. ठीक है. ये हमारी equation number 1. सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, आउटपुट साइड से केवल लगाएं, वी आउटपुट इज इक्वल टू आई इंटू दिस इम्पिडेंस, बट वी कैन राइट वी आउटपुट ऑफ एस इज इक्वल टू Z2S इंटू आई ऑफ एस. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट डू वी डू? Obviously determine the transfer function dividing equation number 2 by equation number 1 because that is the thing which will give Laplace of output divided by Laplace of input. So let's write it, V output S divided by
V input of S, this is equal to Z2S upon Z1S plus Z2S. Now what we will do? Simply substitute the values of this Z2 and Z1 which we have obtained here. Z2 is 1 upon S into C2 divided by Z1 is R1 upon 1 plus R1 C1S प्लस R2, यहाँ R2 मिस हो गया था, R2 प्लस 1 अपॉन S ऑफ C2। ठीक है, हम लोगों ने याद करिए इसके बाद क्या किया था, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे, अल्फा या A एंड T, and in lag compensator what we have done, we have introduced the value beta and T. Since here there are two T's, we can assume as T1, T2. We will introduce 4 variables rather than doing it separately, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, हम दोनों के जो हम लोगों ने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे उसी फॉर्मेट में अगर हम सेपरेटली भी लिख के मल्टीप्लाई कर दें, देन ऑल्सो विल गेट द सेम प्रोडक्ट लाइक दिस। अगर हम जो हम लोगों ने वहाँ पर वैल्यू अज्यूम किए थे A या अल्फ़ा, B या बीटा एंड T, सो लेट अस अज्यूम हमने एक जगह T1 मान रहे हैं, एक जगह T2 मान रहे हैं। चलो लैग वाले को हम लोग T को T1 मान लेते हैं और लीड वाले को T को T2 मान लेते हैं, बिकॉज इन प्रीवियस टर्मोलॉजीज वी हैव ओनली राइटिंग अल्फा एंड T और A एंड T, अदरवाइज बीटा एंड T। सो हियर इट इज, सिंस देयर आर टू things which are merged, we have to assume 4 variables, and when we are assuming these 4 variables, it has to be one for A, one for B, and that is alpha and beta, and T for both of them. That is why we are writing T1 and T2. So for clarification, let me tell you, I have used here T1 for the terminology corresponding to lag and T2 for terminology corresponding to lead. अगर हम इस लैग और लीड नेटवर्क में जो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 प्लस R2 इंटू C1S, यहाँ हो जाएगा B2 की जगह R2 इंटू C2S, जो हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा T1 T2 की वैल्यू अज्यूम की थी, इस एक्सप्रेशन में आप वही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड वेरीफाई इट फ्रॉम हियर, दे विल कम आउट टू बी द सेम। ठीक है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन, वैसे भी ये इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन तो निकला है, and we are doing what we are cascading only. So simply what we have done, we have cascaded the transfer function of lag and lead networks together. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या था, बीटा इंटू 1 प्लस ST1 अपॉन 1 प्लस बीटा ST1, और जो लीड है उसके लिए 1 अपॉन एक्सप्रेशन आया था, तो इट इज़ 1 अपॉन अल्फा इंटू S प्लस 1 अपॉन T1 S प्लस 1 अपॉन AT1, सॉरी इट इज़ T2 हियर। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर हमें कंपनसेटर का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी हैव 4 पोल्स, 4 रूट्स, 2 पोल्स एंड 2 ज़ीरोज़। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट विल दिस सिस्टम लीड टू, दिस कॉम्बिनेशनल लैग लीड सिस्टम will improve the transient response as well as steady state response also. ठीक है, स्टेबिलिटी तो हम स्टेप अप कर ही रहे हैं, हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एरर को भी इम्प्रूव, जब हमें टुगेदर हमें इम्प्रूव करना है, दोनों हमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट चाहिए पूरे सिस्टम में, देन वी यूज़ दिस। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, पहले लीड को इम्प्लीमेंट करते हैं, लीड ने कंपनसेटर को। ठीक है, उससे क्या होता है, लीड हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को मीट आउट करने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लीड की डिज़ाइनिंग करेंगे, उससे क्या करेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सिफिकेशन के स्पेसिफिकेशंस को मीट आउट करेंगे, स्टेबिलिटी को मीट आउट कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लैग को इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट वी आर इम्प्रूविंग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स,
देन वी आर इम्प्रूविंग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इन दोनों चीज़ों से हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंटायरली इम्प्रूव करते हैं along with the improvement in stability of the system. Meaning if system is unstable, we will try to make it stable. If it is marginally stable, again we will try to make it stable, and if it is already a stable system, we will increase the stability of the system. That means we are improving the relative stability of the system. Now think about Bode plot individually of lag lead compensator. Where should be the location of poles, zeros, corner frequencies की बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, 1/T1, 1/T2, 1/αT1, 1/βT2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है। क्या करें अब, हमें ये चीज़ पता है कि अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमें इससे क्या पता चल जाएगा, हमें इससे ये पता चल जाएगा ना कौन सा टर्म किधर लाई करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम सम थिंग्स हियर, लेट्स चेक। लेट्स सपोज ये जो अटेन्यूएशन जो कांस्टेंट है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, लेट इट बी यूनिटी फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। लेट दैट बीटा बी इक्वल टू 10 एंड T2 इज 10 टाइम्स ऑफ T1. फॉर दिस कंडीशन व्हाट कैन वी डू, वी कैन आइडेंटिफाई किधर लोकेशन होएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का, राइट। उससे हम क्या करेंगे, बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे। फॉर द बोडे प्लॉट ऑफ दिस लैग लीड कंपनसेटर व्हाट वी हैव टू डू, we have to again draw this graph into 2 segments. One is for log of magnitude versus frequency, the other is for phase angle versus frequency. What about log of magnitude and frequency में को चारों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलो चेक करते हैं। सिस्टम हमारा क्या है, टाइप 0, नो पोल इज लाइंग एट ओरिजिन। टाइप 0 सिस्टम में स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी dB की जाती है, 0 dB per decade की। लाइन विल बी 0 dB per decade। कहाँ तक, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करेगी, कौन सा है जो पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा, द थिंग विच इज लोएस्ट इन दिस। व्हाट इज द लोएस्ट हियर, दिस बीटा, 1/βT2, ठीक है। क्या है, यही लोएस्ट है। और ये किसकी वजह से आया था, लैग कंपनसेटर के पोल की वजह से, ठीक है। पोल का शिफ्ट कितना होता है, स्लोप में एडिशन कितना होता है, -20 dB पर डेकेड का। प्रीवियस स्लोप में -20 dB पर डेकेड को स्लोप को ऐड कर दो, कितना होगा, 0 में ऐड करेंगे तो सिंपली इट इज -20 dB पर डेकेड, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर विच इज पोल ऑफ लैग कंपनसेटर। नेक्स्ट जीरोस, जैसे ही जीरोस आया क्या हो रहा है, 0 dB पर डेकेड। क्यों, क्योंकि जीरोस में जो स्लोप ऐड होता है वो कितना होता है, +20 dB पर डेकेड का। +20 dB पर डेकेड का जीरोस में पोल ऐड करे, स्लोप ऐड करेंगे तो -20 में +20 गया, ऐड हुआ तो कितना आएगा, 0, तो इट इज 0 dB पर डेकेड। What next? Till when? Till the next corner. What is the next corner? अब 1/T1 और 1/αT1 में देखेंगे तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा बिग है, 1/T1, जीरोज सिस्टम का, ठीक है। वैसे भी एक जगह जीरोज डोमिनेट कर रहा था, एक जगह पोल डोमिनेट कर रहा था लैग और लीड में, वी हैव सीन इट करस्पॉन्डिंगली, राइट। तो क्या हो रहा है, अब लीड का नंबर है बेसिकली, क्योंकि दैट वही है प्रायोरिटी में जो असेंडिंग ऑर्डर में जो बाद में लाई कर रहा है, तो उसमें 1/T1 पहले लाई कर रहा है। 1/T1 किसकी वजह से है, जीरोस की वजह से। जीरोस के लिए कितने का फेज शिफ्ट आता, मैग्नीट्यूड में स्लोप में कितने का एडिशन होता है, प्रीवियस स्लोप में +20 dB पर डेकेड, क्योंकि ये सिंगल जीरोज हैं, सिंपल जीरोज हैं। 0 dB पर डेकेड में +20 dB पर डेकेड होएगा, कितना हो जाएगा, इट विल बी अगेन +20 dB पर डेकेड। कहाँ तक जाएगा, अगली कॉर्नर, विच इज द लास्ट कॉर्नर, क्या है वो,
पोल है 1/α T1 वाला, फारदेस्ट है वो, ठीक है। उसके एडिशन से क्या हो रहा है, फेज एंगल का स्लोप में कितना एडिशन हो रहा है, -20 dB, बिकॉज इट इज अ पोल। -20 dB पर डेकेड का जैसे ही फेज एडिशन करेंगे, प्रीवियस स्लोप है +20 dB का, -20 dB और ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 0 dB पर डेकेड। हैंस दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। फेज एंगल का बात करें तो क्या लिख रहे थे हम लोग, tan इनवर्स ओमेगा T1 प्लस tan इनवर्स ओमेगा T2 माइनस tan इनवर्स अल्फा T1 माइनस tan इनवर्स बीटा T2, ठीक है। आर्बिट्रली क्या करें हम, ओमेगा की वैल्यूज सेलेक्ट करें और फाई की वैल्यू निकाल लें। इफ वी प्लॉट वील सी अगेन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमारा लोएस्ट पहले देखो तो हमारे पास यहाँ पर डिजाइनिंग में कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज में क्या आ गया था, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हमारी लैग की आई थी, फिर लीड की आई थी। तो हमें उसी तरह का बिहेवियर ना फेज एंगल के ग्राफ में भी दिखेगा। तो फर्स्ट इट विल बी शोइंग द एंगल, फेज एंगल प्लॉट सिमिलर टू दैट ऑफ लैग एंड देन सिमिलर टू दैट ऑफ लीड, ठीक है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन है लैग लीड नेटवर्क का। नाउ क्विकली जंप ऑन टू द डिजाइनिंग, व्हाट वी डू हियर, हाउ डू वी डिजाइन a system using Bode plot when we are having lag lead compensator। सबसे पहला काम फिर से वही एरर को एडजस्ट करना। जैसे ही हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलता है, हमारे पास ओपन लूप गेन कांस्टेंट जो है k, जिसको हम नॉर्मली डिनोट कर रहे हैं, वो अननोन होगा। हम उसको मीट आउट करें, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कैसे, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में जो एरर स्पेसिफिकेशंस है उसको मीट आउट कर कर। मतलब जो हमारा डिजायर्ड एरर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को यूज करते हुए हम k की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। जो k की वैल्यू से हमें ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन होगा वो होगा हमारा अनकम्पनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। जैसे ही हमें अनकम्पनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए, अगला काम क्या होता है हमारा, उसका बोडे प्लॉट बनाना और बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकालनी, फेज मार्जिन और उसका करंट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। ये दो टर्म्स निकाले जाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या कहा, लेट्स इम्प्लीमेंट लैग कंपनसेटर, क्योंकि वही पहले दिखा था, अभी हमने बोडे प्लॉट में चेक किया है, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल डिजाइन ऑफ द कंपनसेटर। तो लैग को इम्प्लीमेंट करते हैं, लैग वाले सेगमेंट को। पहले क्या करता है लैग वाला सेगमेंट, यहाँ क्या करेगा, पार्शियल कंपनसेशन देगा, किसका, फेज मार्जिन का, ठीक है। करें क्या हम यहाँ पर, कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसी सेलेक्ट करेंगे इट इज हायर टू द प्रीवियस वैल्यू विच वाज व्हेन इट वाज फुल्ली लैग कंपनसेटेड। अगर मान लो सिस्टम हमारा फुली लैग कंपनसेटर होता तो जो भी क्रॉसओवर आती उससे कुछ भी हायर वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज, चूज एनी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी विच इज हायर व्हेन सिस्टम वाज फुली लैग कंपनसेटेड। अगर कंप्लीटली लैग कंपनसेटेड होता तो जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वैल्यू आती उससे अपर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैग का डिजाइनिंग पहले हो रहा है तो बीटा को डिटरमाइन करेंगे और T2 को डिटरमाइन करेंगे। कैसे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/T2 है, ठीक है, जो हमारा न्यू कॉर्नर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हुआ है वैल्यू, वो 1/T2 क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वो न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मीट आउट करेगी। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला जो हमने लैग कंपनसेटर में भी यूज किया था, न्यू क्रॉसओवर इज इक्वल टू 1/T2 इज इक्वल टू ω2/10, ठीक है। इससे क्या मिल जाएगा हमको, T2 का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बीटा की वैल्यू कैसे मिल रही है, हमें फाई m का वैल्यू पता है, फाई s माइनस फाई प्लस एप्सिलॉन, द सेम फॉर्मूला, ठीक है। वहां से हमें बीटा भी मिल जाएगा जैसा प्रीवियस केस में निकाला था। बीटा मिल गया, T2 मिल गया, आधा काम तो हो गया। अब चलते हैं लीड सेगमेंट की तरफ।
हमें ये पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो हम लोग कंपनसेटर डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू 1 आती है। जानते हो कैसे? एक का टर्म हम लोग ले रहे थे R2 अपॉन R1 प्लस R2 और दूसरे को लेते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R2. One is R2 upon R1 plus R2. The other term is R1 plus R2 upon R2. ये लीड के लिए था, वो दूसरा वाला लैग के लिए। कैंसिल आउट कर दे रहा ना, क्या हो रहा है ये 1 के इक्वल। दैट इज वाई वी से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. तो जैसे ही हमें बीटा मिल गया, हमें अल्फा भी मिल जाएगा डायरेक्टली। कैसे? अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। डिजाइन प्रोसीजर तो एकदम सिंपल है इसका। जैसे ही हमें अल्फा मिल गया, फाई एम मिल जाएगा। कैसे? हमारा फॉर्मूला था ना, साइन फाई एम इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो फाई एम साइन इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि अल्फा तो हमें मिल ही गया बीटा मिल जाने से। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? इसके लिए फाई एम। जैसे ही ये मिल गया, हमें क्या मिलेगी? इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। ठीक है, मैक्सिमम एंगल जहाँ आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देखेंगे वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे ग्राफ को, अनकम्पनसेटेड सिस्टम को। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा हो वो मैग्नीट्यूड रीड करेंगे। दैट इज इक्वल टू माइनस 10 लॉग बीटा। ये पहले भी देखा हम लोगों ने, ठीक है ना, उसी फ्रीक्वेंसी पर मिल रहा है, विच इज 1 अपॉन टी रूट ए बेसिकली। और टी क्योंकि हम लीड के लिए 1 लिखाया था अभी, तो 1 अपॉन T1 रूट अल्फा। ठीक है, तो माइनस 10 लॉग बीटा इंटू ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 रूट अल्फा। क्या अननोन है केवल इसमें? सिर्फ T1। T1 मिल गया, सारा काम तो हो गया। T1 मिल गया, T2 मिल गया, बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया, सब मिल गया। तो क्या मिल गया हमें? ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट लैग लीड कंपनसेटर का। जैसे ही ये ट्रांसफर फंक्शन मिला, क्या करें? कंबाइन कर दें ओरिजिनल अनकम्पनसेटेड सिस्टम से। क्या मिल जाएगा? एक नया कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन। जैसे ही नया कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए, सेम काम, बोडे प्लॉट ड्रॉ करो इस नए कंपनसेटेड सिस्टम का एंड चेक फॉर द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन विच विल lead us to our desired specifications. Okay, now let's quickly jump into one numerical and see how do we basically proceed. ठीक है, this is an example of a lead compensator. यहाँ क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें लीड कंपनसेटर डिजाइन करो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, जिसकी जीएस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है k अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस क्या बता रहा है? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट 10, फाई एम की वैल्यू 36 डिग्री। सबसे पहला काम क्या करें? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट से k की वैल्यू निकालें। ठीक है, सो kv का वैल्यू गिवन है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू एच एस जी एस। एच एस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इग्नोर, मतलब 1 ही लिखी है डायरेक्टली बेसिकली। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो। kv की वैल्यू कितनी है? एक सेकेंड, हाँ, kv की वैल्यू हमारी 10 है। 10 इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू k अपॉन s इंटू एस प्लस 1 इंटू जी एस की वैल्यू 1 है, s से s कैंसिल हुआ, k अपॉन, यहाँ s टेंडिंग टू 0 जगह k अपॉन 1 ही है, k विल बी व्हाट? 10 मिल गया। जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन मिल गया 10 अपॉन s इंटू s प्लस 1, s की जगह j ओमेगा रखो, बोडे प्लॉट बनाओ अनकम्पनसेटेड सिस्टम का। ड्राइंग इज शोन इन दिस बोडे प्लॉट विच आई हैव मैनुअली प्लॉटेड हियर। ठीक, व्हाट इज शोन हियर? मैग्नीट्यूड एंगल एंड फेज एंगल का एक्सिस, फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड एंगल एंड फेज प्लॉट। क्या करें यहाँ पर? टाइप 1 सिस्टम है, -20 dB का स्लोप आएगा पहला, तो आ भी रहा है -20 dB पर डेकेड का स्लोप। जैसे ही पहली आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसके बाद आ रही है, वहाँ ग्राफ अपना स्लोप चेंज करेगा एंड सिंस देयर इज नो अदर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इट विल कंटिन्यू विद द सेम स्लोप। ठीक है, सिंस इट इज अ पोल इट इज -40 dB पर डेकेड की लाइन। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज इट कैन बी। ये हम लोगों ने पहले भी प्लॉट करना सीखा है, सो नो बिग डील। ठीक है, नेक्स्ट
सी हियर दिस इज द फेज प्लॉट, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पता है कैसे, जहाँ भी ये ग्राफ इंटरसेक्ट करा दिस इज द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। What we will do, we will determine the value of phase margin here. This will come out crossover frequency when red it is 3.3 radian per second here and phase margin here obtained is 17 degree, ठीक है। अब क्या करें, नया फाई का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, स्पेसिफाइड फेज मार्जिन इज 36 डिग्री माइनस फेज मार्जिन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेट अस कंसिडर 5 डिग्री हियर, व्हाट वी गेट, न्यू फाई एम विच इज 24 डिग्री, ठीक है। जैसे ही ये फाई एम न्यू वैल्यू मिल गया, क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा, कैसे, 1 माइनस साइन फाई एम अपॉन 1 प्लस साइन फाई एम, फॉर्मूला रखेंगे, अल्फा का वैल्यू मिल गया। जैसे ही ये अल्फा का वैल्यू मिला 10 log 1 अपॉन अल्फा, क्या करें हम, मैग्नीट्यूड कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, 3.75 ढूंढो यहाँ पर 3.75, व्हाट वी विल गेट इज न्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये यहाँ पर, जो दिस इज द न्यू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, आवर न्यू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा रूट अल्फा इंटू टी, ठीक है। हमें इससे क्या फायदा होगा, टी का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, टी का वैल्यू ऑब्टेन होगा, ये फॉर्मूला यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। व्हाट कैन वी डू, अल्फा और टी दोनों का वैल्यू हमें मिल गया है, ठीक है। अल्फा वॉज 0.421 और टी का वैल्यू भी हमें यहाँ से इक्वेशन से सॉल्व करके मिलेगा विच इज 0.385 कमिंग आउट, टी इज कमिंग 1/1। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, 1 प्लस 1 अपॉन T1s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा T1s, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिल जाएगा, नया ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्या करें अब, नए ट्रांसफर फंक्शन को ओरिजिनल सिस्टम से मल्टीप्लाई कर दें। नया ट्रांसफर फंक्शन कितना आया था हमारा, ये 1 प्लस 0.385s 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस टी एस सॉरी, देन 1 प्लस अल्फा टी एस विच इज 0.162s अल्फा टी इंटू एस हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, ओरिजिनल सिस्टम से, कितना था 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1, क्या मिल रहा है हमको, देखो यहाँ पर एक नया ट्रांसफर फंक्शन। अब क्या करें, इस नए ट्रांसफर फंक्शन से हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, मतलब गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। रीड्रॉ दी बोर्डे प्लॉट अगेन, इट इज़ अगेन अ टाइप 1 सिस्टम। स्टार्टिंग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी हमारी कितनी है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट आएगा हियर इट इज़ 40, -20 dB पर डेकेड की लाइन जाएगी कहाँ तक, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी वो एक पोल है, ठीक है, फेज शिफ्ट आया उसकी वजह से। फिर उसके बाद ये वाला जीरोज आएगा, उसके बाद फिर पोल आएगा, तो इट इज़ -20 dB की लाइन, -40 +20 अगेन, फिर +20 का एडिशन है इसलिए -20 अगेन, फिर -20 का एडिशन होगा तो -40 अगेन। मैग्नीट्यूड का प्लॉट मिल गया। एंगल के लिए क्या करेंगे, फाई का वैल्यू फॉर्मूला पे रखेंगे, tan इनवर्स 0.385 ओमेगा माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 0.162 ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। आर्बिट्रली वैल्यूज सेलेक्ट करी हर डेकेड में और हमने प्लॉट कर दिया फेज एंगल प्लॉट, ठीक है। गेन क्रॉसओवर, फेज क्रॉसओवर, गेन क्रॉसओवर यहाँ मिल रही है, ड्रॉ द लाइन, रीड दिस एंगल, 180 के साथ ऐड करें, हमें फेज मार्जिन मिल जाएगी, इट विल बी 38 डिग्री। सो सी हियर what it was 17 degree, what it is now 38. The system is relatively more stable and hence we can see, we can do it for the any other case, हमें solve तो similarly ही करना है और combination use करेंगे तो भी इसी तरह करना है, and that is all about compensation designs. Now you can practice and practice, and that is the thing you can master it by practicing. Thank you very much.